subject matters of Bhagavad Gita, major topics जो discussed, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल and karma. Karma is temporary or it is changeable. Other things are not changeable, fixed. Ishvara is Lord, Jiva is marginal potency of Lord, Prakriti material nature, Kala is time and karma. The karma activity is already discussed. The karma, vikarma we discussed. Ishvara is supreme controller. Actually, Ishvara means controller. Parameshwara means supreme controller. So here Ishvara means Parameshwara. Supreme Personality Godhead, Sri Krishna is the supreme controller and is the source of all that is. Living entities are same with the Lord qualitatively, but quantitatively they are infinitely small. तो इसमें ये हम लोग जानते हैं कि जो सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम लोग भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम क्वालिटेटिवली सेम है. जैसे एक ओशन में ड्रॉप ऑफ ओशन से एक ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर लेते हैं, क्वालिटेटिवली वो सॉल्टी है, और क्वांटिटेटिवली ओशन बहुत बड़ा है, उसका ड्रॉप ऑफ जो वाटर है वो छोटा है. सिमिलरली सो मेनी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं. बिग फायर एंड स्पार्क ऑफ फायर, and a gold mine and a speck of gold. Like that, this so many examples we can take. Living entities are same with the Lord qualitatively, Satchidananda, but quantitatively we are very infinitesimal. Lord is infinite. And Lord Krishna has full his unlimited way in 6 appearances having. So, Soda Ishwarja Purna. So, knowledge, unlimited beauty, unlimited strength, unlimited fame, wealth, and renunciation. तो जीव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड. मामे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनोष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति. तो जीवस आर सेम इन क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड बट वेरी माइन्यूट इन क्वांटिटी. सच्चिदानंद जीवस आर सबऑर्डिनेट ईश्वर बिकॉज द कंट्रोलिंग पावर इज आल्सो गिवन टू कृष्णा. कृष्णा इज गिविंग द सम क्वांटिटी ऑफ कंट्रोलिंग पावर टू जीव. तो द ईश्वर मिनी ईश्वर. So they have also having tendency to control but are always controlled. Though he tries to, Jiva thinks that I am the controller, but actually he is not the controller, he is being controlled. The only controller is supreme controller Krishna. So they are enjoyed and the Lord is the supreme enjoyer. Jivas are satisfied when Lord is satisfied. तो एक आदमी जो है पुरुष, भगवान इज पुरुषोत्तम एंड हम लोग प्रकृति है. तो प्रकृति इज फेमिनाइन नेचर एंड फीमेल इज मेड फॉर द enjoyment of male. So that Purushottam is the Lord. Only one is person is supreme person. Others are all his part and parcel. तो ये पार्ट एंड पार्सल का जो फंक्शन होता है वो होल का सेवा करना. तो अगर जैसे एक मशीन का एक पार्ट होगा, उसका ये काम है कि होल मशीन को सपोर्ट करना है. अगर कोई ऑफिस का एक एम्प्लॉय होता है, वो ऑफिस का काम में अगर सहयोग नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है. तो इसलिए पार्ट एंड पार्सल का जो है काम है वो दैट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल. इट टू सपोर्ट और टू सर्व द होल. सो दैट्स व्हाई दिस जीव इज मींट फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड. जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. बिकॉज पार्ट एंड पार्सल है तो एक सिस्टम का एक पार्ट है, वो होल सिस्टम को सपोर्ट करना है, उसको सेवा करना है. तो हम लोग भी पार्ट एंड पार्सल है, तो हम लोग का ये सेवा है कि भगवान का खुश करना है, उनको प्लीजिंग करना है. प्रकृति हम लोग डिस्कस किया था, मेटेरियल नेचर. तो वो 3 गुण में बना हुआ है एंड सत्व रज तम गुण हम लोग डिटेल में डिस्कस किया था पहले. गुडनेस मीन्स सत्व गुण, पैशन रज गुण एंड इग्नोरेंस तम गुण. तो तम गुण मीन्स लैक ऑफ नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम कौन है, कहाँ से आया, ये सब पता नहीं है, और हम लोग लेजी रहते हैं. इग्नोरेंस मीन्स इन लेजी एंड इट इज इग्नोरेंस का एक क्वालिटी है, इट बाइंड्स विथ मैडनेस एंड स्लीप. So ignorance means lazy people, they sleep more than sometimes 10-12 hours if they will sleep, and they are not very much active. Passionate persons are very active in materially, but goodness people are very calm and quiet, and they are very thoughtful, and they are having proper knowledge, good knowledge about like in scientists also, they are also in mode of goodness, or philosophers. But beyond that goodness, that is Vaishnava there, or devotee of Vishnu. So they are in mode of प्योर गुडनेस का मोड में है, दैट इज शुद्ध सत्व या वासुदेव सत्व में रहते हैं. काल का बारे में हम लोग डिस्कस किया था. भगवान बोले मैं ही काल हूँ.
तो श्री भगवान उवाच कालस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहृतम इह प्रवृत्ते रीते अपि तम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थित प्रति अंगकेषु योधा. So the Supreme Personality Godhead said, "Time I am the greatest destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all the people, with the exception of you. The soldiers here on both sides will be slain." So ये जो है 11 चैप्टर यूनिवर्सल फॉर्म भगवान का विश्वरूप दर्शन है. तो भगवान का जो विश्वरूप दर्शन करते हुए अर्जुन भयभीत हो जाते हैं. तो इसीलिए बोले आप कौन है. तो भगवान तो बता रहे मैं काल हूँ और मैं आया हूँ दोनों साइड का जो जितना भी लोग है सोल्जर्स है पांडव ओनली पांडव लोग को छोड़ के और सबको मैं ध्वंस करने के लिए आया हूँ. आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड. सो आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो. भगवान भी हाँ सृष्टि भी करते हैं और वही पालन भी करते हैं, वही ध्वंस भी वही करते हैं. तो ब्रह्मा जी तो क्रिएट करते हैं वो भगवान के से नॉलेज लेके करते हैं, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएटर. और सिमिलरली विष्णु पालन करता है जो कि भगवान कृष्ण विष्णु है. और जिस हम लोग का शिव जी जो है वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भी सेकेंडरी डिस्ट्रॉयर. भगवान डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तब भी ये डिस्ट्रॉय होता है और उस टाइम में उनका ये रोल है, ये तांडव लीला करते हैं. कर्म क्या है, हम लोग कर्म डिस्कस किए थे कि कर्म नहीं करके एक मोमेंट कोई भी नहीं रह सकता है. नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठति अकर्मकृत एंड कार्यते ही अवस कर्म सर्व प्रकृति गैर जैर गुण. तो नहीं कश्चित क्षणमपि कोई भी एक टाइम एक क्षण एक मोमेंट भी नहीं है, वहीं पे भी एक मोमेंट में कोई भी कुछ नहीं करके नहीं रह सकता है. अकर्मकृत तो कुछ भी नहीं करके नहीं रह सकता है. कार्यते ही अश्वस्व कर्म सर्वो प्रकृति जैर गुणे. नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर ए मोमेंट. तो यज्ञार्थं कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार. तो हम लोग को कर्म कैसा करना चाहिए ना, भगवान विष्णु यज्ञ विष्णु के लिए करना है. बिकॉज एवरीथिंग इज मेड फॉर एंजॉयमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा. तो अगर हम भगवान का सेवा के लिए नहीं करेंगे तो हम कर्म का बंधन में फंस जाएंगे. अदरवाइज हम लोग को ये मुक्त होके ये मेटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके हम भगवान का पास में जा सकते हैं. तो कर्म थ्री टाइप का कर्म अकर्म विकर्म हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. एंड देन वी कम टू एसेंस ऑफ योगा. तो योग क्यों करना है. योग मीन्स कनेक्ट टू कृष्ण. तो जीवर के जो स्वरूप है भगवान को कनेक्ट करना है, उनका सेवा करना है. जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो ही हैज टू सर्व एंड दैट सर्विस इज कॉल्ड जो दैट भक्ति. तो सर्विस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दैट इज कॉल्ड भक्ति. तो यहाँ पे भी ये बोले कि जियम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्य संकल्प योगी भवति कश्चन. व्हाट इज कॉल्ड रिनंसिएशन वी शुड नो to be the same as yoga or linking oneself with supreme. Ocean of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. तो हम लोग को देखते हैं कि जोगी मतलब क्या है. जोगी मतलब जोग मीन्स कनेक्ट. तो कनेक्ट टू कृष्ण तभी उसको जोगी बोलेंगे. जो कनेक्ट नहीं करते हैं वो भगवान से और इंद्रिय से इंद्रिय को ट्राई करते हैं इंद्रिय भोग वस्तु से उद्धार दूर कर लेने के लिए, लेकिन उसको इंद्रियों को भगवान का सेवा में नहीं लगाते हैं, तो वो जोगी नहीं है. तो वो दैट इज नॉट रियल जोगी. सो दे आर लाइक ध्यान जोगी बट दे आर नॉट द रियल जोगी. तो रियल जोगी कौन है, ना भक्त जो है भक्ति रास्ते में जो रहते हैं वही रियल जोगी है. तो जोगी नाम अपि सर्वेशम मदगतन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते ये माम सौम्य युक्त तमम मत. तो जोगी का अंदर में जितना भी हाईएस्ट जोगी कौन है, जो मेरा साथ में अंतरात्मा में हमको जोड़ के रहता है सब समय. तो भगवान वही बोल रहे हैं कि भक्त जो है सब समय भगवान को उसका अंतरात्मा में रखता है, उनका चिंतन करता है, उनका सेवा करना चाहता है. तो इसीलिए वही रियल जोगी है. तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि जो 4 प्रोसेस योगा का जो 4 लेडर है, मैंने लेडर का 4 स्टेप्स है. कर्म योगो, ज्ञान योगो, ध्यान योगो, भक्ति योगो. तो भक्ति योग हाईएस्ट है. तो बाई स्टेप मेथड में जाएंगे तो इन दिस कलियुग इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच इन दैट लेवल. सो इट इज बेटर टू टेक दिस लिफ्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो जो डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हुए एक आदमी भक्ति योग में पहुंच जाएगा. दैट इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कलियुग. अदर प्रोसेस आर वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक टाइम टू रीच इन दैट लेवल ऑफ भक्ति योग.
तो यहीं पे बोल रहे हैं भगवान, जो तपस्वी भी अधिको योगी, ज्ञानी भी अपनी मत अधिको, कर्मी भी अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। तो इसका जो योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मत। ये तो लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता का 6 चैप्टर का ध्यान योग चैप्टर का 2 लास्ट श्लोक है। तो तपस्वी भी अधिको योगी, तो योगी कौन से, जो कौन सा योगी बड़ा है ना, जो तपस्वी भी से भी बड़ा होगा, मतलब जो ध्यान योगी है, तपस्या करते हैं, उनसे वो योगी बड़ा है। ज्ञानी भी पे अपनी मत 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 अधिक हो, मेरा मत है, ये है मेरा जो हम ये मैं जो मेरा व्यू है, क्या ज्ञानी ज्ञानी से भी वो योगी बड़ा है, कर्मी भेद से जो अधिक योगी कर्मी से भी बड़ा है। मतलब कौन सा योगी है, तो कर्मी से बड़ा, ज्ञानी से बड़ा, ध्यानी से बड़ा, तो भक्त योगी है। तो तस्मात् योगी भवार्जुन, तो उस टाइप का भोगी भोगी योगी बनना है। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में क्लैरिफाई करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते ये माम समय युक्त तमो मत। तो जितना भी योगी है, सब योगी से जो कौन मेरे बहुत क्लोज है या मेरे लिए बहुत बड़ा योगी है, मद्गत अंतरात्मा, जो मेरे को अंतरात्मा में उसका रखता है, उनका हर समय जो हार्ट मेरा तरफ जाता है, श्रद्धावान भजते माम, और श्रद्धा के साथ में मेरे को भजन करता है, ये मेरे से युक्त तम। तो युक्त युक्ततर युक्ततम, युक्त मीन्स कनेक्ट, युक्ततर मीन्स कनेक्ट, बेटर कनेक्ट, युक्ततम मीन्स हाईएस्ट कनेक्ट। तो दिस भक्ति योग प्रोसेस को हाईएस्ट कनेक्ट, युक्ततर इज ध्यान योगी प्रोसेस, एंड युक्त प्रोसेस इज ज्ञान योगी प्रोसेस। तो ये तो 3 प्रोसेस में तो हाईएस्ट होता है भक्ति। तो हम लोग भगवान को क्यों जोड़ना चाहते हैं, क्या याद रखना है, तो हम तो जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हमारा ये काम है कि हम भगवान का सेवक है, भूल गया है। और एक चीज़ है कि हम भगवान से आए हैं, तो भगवान का पास में जाना चाहिए। तो कैसे जाएंगे ना, भगवान को सब समय याद करेंगे तब जा सकते हैं। तो इसलिए अंत काले क्षमा में बस स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो प्रयत सुमध्वम जाति नास्ति अत्र संशय। तो जो तो अंत काल, एट द टाइम ऑफ डेथ, इफ वन इज एबल टू रिमेंबर मी, तो वो उसका वो शरीर त्याग करने के बाद में मेरा भावों को प्राप्त अटेंड करेगा, तो मेरा नेचर को अटेंड करेगा, तो मेरा पास में आएगा। तो अगर नहीं करेगा, तो लास्ट में क्या होगा ना, जम जम वापी स्मरण भावम तजंत अंत्य कलेवरम तम तम एवती कौनते सदा तद्भाव भवित। तो जो अगर मेरे को नहीं याद करके अगर आप किसी को याद भी करता है, तो उसी टाइप का भाव में वो जाएगा। जैसे हम लोग सुने हैं, जो एग्जाम्पल है जड़ भरत, उनका प्रीवियस लाइफ में वो मृग वर्ण थे, वो मुर्गा का प्रीवियस लाइफ में वो भरत राजा थे। तो वो मृगों का चिंता करते करते छोटा मृग को, तो वो फिर उनका लाइफ वो चेंज हो गया था। फिर लास्ट में वो ये मनुष्य शरीर छोड़ के फिर डियर का बॉडी में चले गए। इसीलिए क्या करना है ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मन बुद्धि माम अवशेषि असंशय। इसीलिए सब काल में, सब समय में तुम्हें मेरे को चिंतन करो, तुम्हारा मन बुद्धि को मेरे पास में दे दो, तो ये मेरा ये असंशय, अनडाउटेडली विल कम टू मी। ये ऐसे ही सब समय जो भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप युद्ध करने का टाइम में भी मेरे को याद करो, विच में बी वेरी डिफिकल्ट, बट कृष्ण वाज एबल टू डू, माने अर्जुन वाज एबल टू डू इट। तो भगवान बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक और बोलते हैं 9 चैप्टर में, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यमे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्तिया प्रयतम अस्नामि प्रयतात्मनो। तो भगवान को अगर भक्ति का साथ में कुछ एफर करेंगे, तो भगवान बोलते हैं मैं ग्रहण करूंगा। पत्र हो, पुष्प हो, पत्र में तुलसी पत्ता है, फूल है, या मिल्क है, तो ये सब टाइप का चीज ग्रहण से, वेजिटेबल से भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान बोले मैं उसको आग्रह साथ में ग्रहण करूंगा। अगर वो तुम भक्ति से एक्सेप्ट नहीं दे सकते हो, तो आप एक काम करो, जो भी आप कर रहे हो करो, उसको मेरे को जोड़ के करो, तो ग्रेजुअली वो आपका प्यूरिफिकेशन होगा, तभी देन यू कैन कम टू हायर प्रोसेस, हाई लेवल। तो जत करोषि जदस्नासि जदोषि युजसी ददासी यत तत्तपस्यसि कौन्तेय, तो यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever stage you perform, do that son of Kunti as an offering to me। जो कर रहे हो, जो ग्रहण कर रहे हो, जो दान दे रहे हो, जो किसी को कुछ भी ऑफर कर रहे हो, तो ये सब मेरे को ऑफर करो, मेरे इसके लगा के मेरे को सब कुछ करो, तो तभी आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा।
तो फिर 4 जो श्लोक है भगवद गीता का इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसको बोलते चतुश्लोकी भगवद गीता। दैट इज चैप्टर 10 का 8, 9 एंड 10, 11 दिस वो 4 श्लोक को लेकर चतुश्लोकी भगवद गीता बोला गया है, एसेंस ऑफ भगवद गीता। 10.8 में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। I am the source of everything, that is all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Vachitamadgata prana madhyanta parasparam कथयन्तस्य माम नित्यम दुष्यन्ति च रमन्ति च। तो पहले तो ये संबंध ज्ञान में है अहम सर्वस्व प्रभो, अब हम सब कुछ भगवान से निकलता है। तो ये इस टाइप का जान के जो हमको स्मरण करता है, भजन करता है, तो वो दैट इज द रियल पर्सन। उसका लिए हम हमारा हार्ट सब समय ये करता है। तो मच्चित्तम अद्गत प्राणम बध्यंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। हिंदी श्लोक को क्या बोलते हैं कि ये अभिधेय है। तो जो भक्त एक भक्त से मिलता है दूसरा भक्त है, तो क्या करते हैं मज्जित मद्गत प्राण, तो वो लोग का जो है चिंतन चित्त या हृदय मेरे पास में रहता है, और बध्यंत परस्परम वो लोग अपना बीच में डिस्कस करते हैं। कथयंत माम नित्यम, मेरा बारे में वो वही कथा करते हैं। तुष्यंति च रमन्ति च, मेरा बारे में डिस्कस करके वो खुश होते हैं। द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि मे बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। So for those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. तो तेषां सतत युक्त नाम, वो जो डिवोटी मेरे साथ में कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है, भजता माम प्रीतिपूर्वकम, मेरे को भजन करता है प्रीति का हिसाब से, एवं ददामी उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, जैसे कि वो मेरा पास में आ जाएगा। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वत। To show them special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो ये जो है भगवान किसी को तेसम एवं अनुकंपार्थम कृपा करके अहम अज्ञान जाम तमः, एक अज्ञान रूप ज्ञान से जो इग्नोरेंस निकलता है, जो अनजान अज्ञान से, जो उसको हम मैं कृपा करके उसको अंधकार रूप से हमको अंधकार से उद्धार करता हूँ ज्ञान रूप का दीप जला के। तो ज्ञान दीपन भाष्य तो हमारा अंदर में जितने इग्नोरेंस है भगवान पास में सरेंडर करेंगे, भगवान हमको उनका जो लाइट है ज्ञान रूप का जो लैंप है उसका हिसाब से दे के हमको अज्ञान को दूर कर देंगे। Another most important श्लोक is 11.55 मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैरी सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। तो यहाँ पे बोल रहे कि मत कर्म कृन मत परम, मेरे को हे अर्जुन यू एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस एंड फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड मेटेरियल स्पेकुलेशन। कर्म और ज्ञान को छोड़ के, he who works for me, who makes me the supreme goal of life and who is friendly to every living entity living me, he certainly comes to me. तो ये क्वालिफिकेशन दिया गया कि कैसे पांडव लोग को बोले कि मेरे पास में कौन आ सकता है जो मेरा काम में सबसे एंगेज है, मेरे को श्रेष्ठ मानता है, मेरा भक्त का संग में रहता है, लेकिन भक्त के साथ में रहेगा लेकिन कुसंग से दूर रहेगा। तो निर्वैरी एवं किसी का साथ में बैरी भाव नहीं या एनमिटी नहीं है, वो सबके लिए आउट ऑफ लव एंड कंपैशन सबके लिए सोचते रहते हैं। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पद अव्ययम तत्। निर्माण मोह जत संग दोष, निर्माण मीन्स नॉट अ माइंड, निर्मम मीन्स नॉट निर्मम निर्माण मोह, फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रेस्टीज एंड इल्यूजन एवं फॉल्स एसोसिएशन। तो जो मेरे को ऐसे जानता है तो who are done with material lust, who are freed from the difficulty happiness and distress and who unbewildered known to know surrender, भगवान को वही सरेंडर कर सकता है द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होके आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा,
इसीलिए निर्माण मोह ज्योति संग संग दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर श्लोक है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्त श्रुति ज्ञान उपवनं च वेदस्य सर्वम अहम अवेद्य वेदांत कृत वेदविद चायवहम्। मैं सबका हृदय में बैठा हूँ और मेरे से सब मेमोरी आता है, इंटेलिजेंस आता है, फॉरगेटफुलनेस से आता है, तो भगवान से ये सब आता है। तो हम लोग जो है भगवान का पोजीशन को ठीक से हमको जानना चाहिए। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन् मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। Thus, though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode by my mercy. मनमना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु माम अवशेषी सत्यम ते प्रतिजानि प्रियसी में। ये 18 अध्याय का 65 श्लोक 65 इसका जो है भगवद्गीता का सारांश है। Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. तो ये भगवान बोलते हैं मेरे को सबसे 4 चीज करो, मेरे को मन में चिंतन करो, मेरा भक्त बनो और मेरे को पूजा करो, मेरे को नमस्कार करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास में आ जाओगे क्योंकि यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। माँ मैं वैसे से सत्यम थे प्रतिजानी प्रियसी में, यू आर माई प्योर डिवोटी, तो मेरे पास में आप आ जाओगे। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sins of reactions. Don't fear. और यहाँ पे fearlessness का दे रहे हैं आश्वासना। जत्र यज्ञेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवाणी अति मात्र माम। ये भगवद्गीता लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक है 18.78 कि यहाँ पे ये wherever कृष्ण इज देयर योगेश्वर एंड wherever पार्थ है उनका जो डिवोटी है, तो वहीं पे सब जो जितना भी अच्छा चीज है वहीं पे है। मॉरालिटी, एक्सटर्नल पावर, विक्ट्री, अपुलेंसेस, एवरीथिंग इज देयर। So where there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be certainly opulence, victory, extended power, and morality. That is my opinion.